वेलकम क्लास। आज का टॉपिक है ऑपरेटर्स इन जावा। ऑपरेटर्स होते क्या हैं? ऑपरेटर रिप्रेजेंट करते हैं ऑपरेंड्स को विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर्स। ऑपरेशंस दैट आर रिप्रेजेंटेड बाय ऑपरेटर्स एंड द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ऑपरेशन आर रिफर्ड टू एज ऑपरेंड्स। ऑपरेटर्स कंप्राइजेस ऑफ अरिथमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल एंड सर्टेन अदर टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। ऑपरेटर जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं बिटवीन ऑपरेंड्स नोन एज ऑपरेटर्स। ऑपरेटर यहाँ पर कई तरह के होते हैं, लाइक arithmetic operator, relational operator, logical operator, and certain other operator. Move to arithmetic operator. Arithmetic operators provides five basic operators for calculation, like multiplication, division, remainder, addition, and subtraction, which are the symbol, multiply, divide, modulus, plus, and minus. Unary operators that act on one operand are referred to as a unary operator. Operator जो एक्ट करते हैं, काम करते हैं किसी एक ऑपरेंड्स पे, उसको कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर पहला है यूनरी प्लस एंड यूनरी माइनस। यूनरी प्लस, लेट्स मूव टू यूनरी प्लस। द ऑपरेटर यूनरी प्लस विद एग्जांपल, इफ a is equal to 3 then plus a means 3 with the प्रिंट फंक्शन system.out.println प्लस a। अगर हम प्रिंट कराएंगे तो प्लस a से इसकी वैल्यू पे आउटपुट आएगा 3। इफ a is equal to -7 then प्लस a means -7। इसको प्रिंट कराएंगे println के थ्रू, आउटपुट आएगा -7। a is equal to 0 then plus a means 0। move to unary minus। if a is equal to 2 then minus a means -2। प्रिंट कराएंगे इसको तो -2 आउटपुट आएगा। if a is equal to -2 then minus a means 2 means minus minus हो जाएगा, will be plus, आउटपुट आएगा 2। if a is equal to 0 then minus a means 0। now move to binary operators। operator that act upon two operands are referred to as a binary operator। operator जो two operands पे वर्क करते हैं उनको बोलते हैं binary operators। पहला इसमें है addition operator which is plus sign, 10 plus 6 result is 13 and a plus 3 result is 5 where a is equal to 2 and a plus b result is 7 where b is equal to 7। कुछ important points है, like its operand may be byte, short, int, long, char, float and double। इसमें boolean नहीं होता। move to subtraction। if I use 12 minus 5 result is 7 and a minus 3 result is 2 where a is equal to 5 and a minus b result is 1 where b is equal to 4 and a is equal to 5 minus 4 answer will be 1। the operands may be integer or float। move to multiplication। 2 into 5 result is 10, a into 2 result is 12 where a is equal to 6 and a into b result is 18 where b is equal to 3। move to division। it produce the quotient। इसमें quotient आता है 50 divided by 5 result is 10 and a divided by 2 result is 6 where a is equal to 12। 12 divided by 2 answer will be 6। x divided by y where x is equal to 9.3 and y is equal to 3 then 9.3 divided by 3 answer will be 3.4। ध्यान दीजिएगा, अगर इसमें कहीं भी डिवाइडर या डिवाइडेंट अगर डेसिमल यानी कि फ्लोट टाइप होगा तो आंसर भी इसका फ्लोट टाइप आएगा, लाइक x divided by y आंसर विल बी फ्लोट टाइप। 2 divided by 8 आंसर विल बी 0। 2 डिविजिबल नहीं है 8 से, आंसर विल बी 0। लेट्स मूव टू द मॉडुलस ऑपरेटर। इट प्रोड्यूसेस द रिमाइंडर। इसमें रिमाइंडर आता है, सपोज दैट डिवाइड 16 मॉडुलस 5 रिजल्ट इज 1। p मॉडुलस 6 आंसर इज 2 वेयर p इज इक्वल टू 20। p मॉडुलस q रिजल्ट इज 4 वेयर q इज इक्वल टू 8 एंड p इज इक्वल टू 20। 7.9 मॉडुलस 2.9 रिजल्ट इज 1.8। इसमें भी अगर कहीं भी अगर डेसिमल पार्ट होगा तो आंसर आएगा डेसिमल में यानी कि फ्लोट टाइप। -5 मॉडुलस -2 रिजल्ट इज -1। 8 मॉडुलस 9 रिजल्ट इज 8। यहाँ पर अगर 8 को 9 से मॉडुलस करेंगे जहाँ पे 9 8 से ग्रेटर है तो आंसर इसका आ जाएगा 8। अगर स्मॉलर होगा तो स्मॉलर वैल्यू में आंसर आ जाएगा और ग्रेटर होगा तो उसका रिमाइंडर आएगा। नाउ मूव टू ऑपरेटर प्लस विद स्ट्रिंग। प्लस साइन ऐसे इस्तेमाल होता है फॉर एडिशन। व्हेन वी यूज दिस विद अ स्ट्रिंग then result will be different। However, if you use plus operator with a string, it concatenates। ये क्या करता है? जोड़ता है, एडिशन नहीं, ऐड concatenate करता है। फॉर एग्जाम्पल system.out.println 2 plus 5 आंसर इज 7, एडिशन करेगा। When I use with a string 2 plus string 5 आंसर इज 25। 2 plus 5 को ये concatenate करेगा, आंसर इज 25। If I use string plus integer, string यहाँ पे hello है और integer at 1 2 3, तो यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ आगे जो भी चीज़ आएगा whether it's इंटीजर, whether it's कैर, फ्लोट, डबल, व्हाटएवर, उसको ट्रीट करेगा एज अ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हेलो 1 2 3 हो जाएगा। इफ आई यूज 1 2 3 प्लस हेलो तो 1 2 3 भी क्या हो जाएगा? 1 2 3 न्यूमेरिक है, आगे स्ट्रिंग है तो ये भी क्या हो जाएगा? कॉन्कार्डिनेट हो जाएगा। इफ आई यूज 2 plus 5 प्लस हेलो स्ट्रिंग, 2 plus 5 यहाँ स्टार्टिंग हो रही है इंटीजर से, नंबर से, तो यहाँ नंबर ट्रीट करेगा, इसको स्ट्रिंग ट्रीट नहीं करेगा। तो यहाँ पे 2 plus 5 हो जाएगा 7 और प्लस स्ट्रिंग हेलो उसमें ऐड कॉन्कार्डिनेट कर देगा, आंसर इज 7।
7। हेलो, ध्यान दीजिएगा, अगर स्टार्टिंग इसमें होती है स्ट्रिंग से तो आगे जो भी चीज़ आएगा उसको स्ट्रिंग ट्रीट करेगा, चाहे नंबर हो चाहे वो स्ट्रिंग हो। इफ स्टार्ट विद अ नंबर तो नंबर को नंबर पे जो भी ऑपरेटर लगा होगा वो उसको पहले वो परफॉर्म करेगा, देन आगे जो भी वैल्यू होगी चाहे स्ट्रिंग हो चाहे जो भी नंबर हो उसको उसके अकॉर्डिंगली करेगा। यानी कि 2 + 5 पहले हो जाएगा 7, देन आगे स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को कॉन्कार्डिनेट कर देगा। सेकंड ऑपरेटर इज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। दिस ऑपरेटर्स प्लस ऐड 1 टू इट्स ऑपरेंड एंड -1 सब्सट्रैक्ट 1। प्लस ऑपरेंड्स ऐड करता है 1 इसके ऑपरेंड्स पे एंड माइनस सब्सट्रैक्ट 1 इट्स ऑपरेंड। दूसरी बात करें, इन अदर वर्ड्स x इज इक्वल टू x प्लस 1 इज सेम एज x प्लस प्लस और प्लस x, एंड x इज इक्वल टू x माइनस 1 is same as minus x or x minus 1. Both the increment and decrement operator comes in two varieties, that is prefix and postfix. The prefix version comes before the operand. Prefix version apply होता है operands के ठीक पहले, whether it's a plus x or minus x. And postfix version comes after the operands. It is x plus or x minus 1. Version have the same effect upon the operands, but they differ when they take place in an extension. ये two version का same effect होता है operands पे, लेकिन differ करता है जब ये प्लेस होता है एक्सप्रेशन में। लेट्स वी हैव एग्जांपल। प्रीफिक्स वर्जन, जावा परफॉर्म द इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेशंस बिफोर यूजिंग द वैल्यू ऑफ ऑपरेंड्स। फॉर एग्जाम्पल, इफ p इज इक्वल टू 0 एंड s इज इक्वल टू 10, देन p इज इक्वल टू p प्लस x। यहाँ पे p की वैल्यू 0 है, s की वैल्यू 10 है, देन p इज इक्वल टू p प्लस x। यहाँ s पे अप्लाई हुआ है प्रीफिक्स ऑपरेशन। लेट्स हैव अ लुक कैसे परफॉर्म होता है ये। यहाँ पे p और p प्लस 1 को हमने रिप्रेजेंट किया है एक चार्ट में। यहाँ p इज इक्वल टू 0 है, इनिशियल वैल्यू में 0 है, यहाँ पे s इज इक्वल टू 10 है। इनिशियलाइजेशन पहले होता है, सेकंड स्टेप में होता है फर्स्ट इंक्रीमेंट। प्रीफिक्स में पहले इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद वैल्यू अपडेट होगी। यहाँ पे 0 p की वैल्यू 0 बनी है, यहाँ पे इंक्रीमेंट किस पे हुआ है, s पे हुआ है। इट इज 11, 10 से क्या हो गया, ये 11 हो गया। नाउ इट परफॉर्म ऑपरेशन, देन 0 + 11 विल बी 11, p की वैल्यू हो जाएगी 11। इसका प्रिंसिपल है चेंज देन यूज, पहले चेंज होगा देन यूज होगा। द एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू p इंटू माइनस s। यहाँ p इज इक्वल टू 4 है, s इज इक्वल टू 3 है। यहाँ पे प्रिंसिपल अप्लाई होगा, पहले चेंज होगा देन यूज होगा। p इक्वल टू 4 इनिशियल वैल्यू है, p एंड s इज इक्वल टू 3 यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है। सेकंड स्टेप में होगा फर्स्ट इंक्रीमेंट, देखिए x की वैल्यू पहले क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीमेंट हो तो 3 से हो जाएगी वैल्यू 2। 4 इंटू 2 आंसर इज 8। नाउ p बिकम 8। नाउ मूव टू पोस्टफिक्स वर्जन। जावा फर्स्ट यूजेस द वैल्यू ऑफ the operands in evaluating the expression before incrementing or decrementing the operand's value. For example, p is equal to p plus s plus plus, where p is equal to 0, s is equal to 10. ये use then change प्रिंसिपल पे वर्क करता है। यहाँ पर p की वैल्यू 0 है इनिशियल वैल्यू और s की वैल्यू 10 है। सेकेंड स्टेप में फर्स्ट यूज़ होगा, पहले इसकी वैल्यू यूज़ होगी तो 0 + 10 हो जाएगा 10 और p बिकम 10। नाउ इंक्रीमेंट, अब अगले स्टेप में थर्ड स्टेप में इंक्रीमेंट होगा। नाउ s बिकम 11। नेक्स्ट एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू p इंटू s माइनस वेयर p इज इक्वल टू s इज इक्वल टू 4। ये यूज देन चेंज प्रिंसिपल में वर्क करता है। यहाँ पे इनिशियल वैल्यू p की है 2, s की वैल्यू है 4। यहाँ s पे अप्लाई हुआ है डिक्रीमेंट s माइनस मीन्स पोस्ट डिक्रीमेंट, पहले यूज होगा देन डिक्रीमेंट होगा इसमें। तो 4 इंटू 2 यानी कि s इंटू p इंटू s, 2 इंटू 4 आंसर इज 8। नाउ p बिकम 8, देन इसके बाद डिक्रीमेंट होगा। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है सॉल्व करने के लिए, इवेलुएट करने के लिए। y इज इक्वल टू प्लस x प्लस 2x इफ x इज इक्वल टू 5। प्लस x इज अ प्री इंक्रीमेंट, 5 बिकम 6। नाउ x 5 से 6 हो जाएगा। पहले इंक्रीमेंट होगा, इस पर प्रिंसिपल अप्लाई होगा। प्री इंक्रीमेंट में फर्स्ट इंक्रीमेंट देन यूज, पहले इंक्रीमेंट होगा यानी कि x हो जाएगा 5 से 6 यानी कि 6 प्लस 2 इंटू एक्स की वैल्यू 6 हो गई, 2 इंटू 6 12, तो 6 प्लस 12 हो जाएगा 18। नेक्स्ट एक्सप्रेशन p इज इक्वल टू x प्लस इंटू 2 माइनस प्लस x इफ x इज इक्वल टू 6। यहाँ पे x की वैल्यू 6 दी हुई है, यहाँ पे अप्लाई हुआ है प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स, बोथ x पे अप्लाई हुआ है लेफ्ट से पोस्टफिक्स। पहले यूज होगा देन अपडेट होगा यानी कि x इज इक्वल टू 6 इंटू 12 माइनस और फिर अप्लाई हो गया प्लस x यानी कि प्रीफिक्स। पहले इंक्रीमेंट होगा यानी कि पहले अपडेशन होगा, यूज बाद में होगा। पहले x प्लस में इंक्रीमेंट हुआ है पोस्ट इंक्रीमेंट, अगले स्टेप में वैल्यू उसकी बढ़ेगी, 6 हो जाएगी 7, लेकिन फिर अप्लाई हो गया प्री इंक्रीमेंट यानी कि 6 से 7 हो गया, 7 से फिर हो जाएगा 8 यानी कि 12 माइनस 8 आंसर इज 4। मूव टू थर्ड टॉपिक, इट इज रिलेशनल ऑपरेटर। रिलेशनल ऑपरेटर प्रोवाइड करते हैं 6 रिलेशनल ऑपरेटर कंपेयरिंग करने के लिए नंबर और कैरेक्टर, बट दे नॉट वर्क स्ट्रिंग। इसको हम स्ट्रिंग के साथ नहीं अप्लाई कर सकते। इफ द कंपैरिजन इज ट्रू, अगर कंपैरिजन ट्रू होता है रिलेशनल ऑपरेटर रिजल्ट इज बुलियन टाइप। अगर कंपैरिजन ट्रू होगा जब रिलेशनल ऑपरेटर की वैल्यू बुलियन टाइप होगी, बट दे डू नॉट वर्क विद स्ट्रिंग। इसका आउटपुट ट्रू या फॉल्स होगा जब
एक्सप्रेशन रिजल्ट ट्रू होगा तो आउटपुट आएगा ट्रू, नहीं तो आएगा फॉल्स। कंपैरिजन अगर ट्रू होगा तो आउटपुट आएगा ट्रू, और कंपैरिजन फॉल्स होगा तो आउटपुट आएगा फॉल्स। कुछ रिलेशन ऑपरेटर की चार्ट दिए हुए हैं, एक्स और वाई। एक्स की वैल्यू पहले 1 है, वाई की वैल्यू 0 है सेकंड स्टेप में। फर्स्ट स्टेप में यहाँ पे एक्स की वैल्यू फर्स्ट स्टेप में 0 है, सेकंड स्टेप में वाई की वैल्यू 1 है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू थर्ड स्टेप में 4 है, वाई की वैल्यू 4 है। एक्स इज लेस देन वाई, क्या फर्स्ट स्टेप में एक्स की वैल्यू वाई से लेस है? नो, फॉल्स। थर्ड में एक्स इज ग्रेटर देन वाई, क्या एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है? इट इज़ ट्रू। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, कंडीशन इज फॉल्स, क्या एक्स की वैल्यू वाई से लेस है या इक्वल टू? नो, इट इज़ फॉल्स। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, क्या एक्स की वैल्यू वाई से ग्रेटर है लेकिन इक्वल टू नहीं है। इन दोनों में लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर इनमें से कोई एक भी ट्रू होगा, चाहे ग्रेटर हो, चाहे लेस हो या इक्वल टू हो, कोई भी अगर ट्रू होगा तो आउटपुट इसका ट्रू आ जाएगा। यहाँ पे दो ऑपरेटर का इस्तेमाल किया गया। एक्स इक्वल टू वाई, क्या एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल टू में है? नो, फॉल्स। एक्स इज नॉट इक्वल टू वाई, क्या एक्स की वैल्यू वाई के बराबर नहीं है? या वाई की वैल्यू एक्स के बराबर नहीं, कि एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 0 है। ट्रू आंसर। एक्स की वैल्यू सेकंड स्टेप में 0 है, वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू क्या वाई से लेस है? यस, ट्रू है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई, फॉल्स। एक्स इज लेस देन इक्वल टू वाई, इट इज ट्रू। एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू वाई, इट इज फॉल्स। x equal to y, condition is false, and x not equal to y, condition is true. थर्ड, x equal to 4, y equal to 4, यहाँ x और y की वैल्यू इक्वल टू हो गई है। ना लेस में ना ग्रेटर में, दोनों में इसकी वैल्यू आएगी फॉल्स, लेकिन लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू में इसकी वैल्यू होगी ट्रू, क्योंकि लेस नहीं है ना ग्रेटर नहीं है, लेकिन इक्वल टू है। x equal to y, condition is true, and x not equal to y, condition is become false. थैंक यू सो मच क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में टाइप कर सकते हैं।